بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ مریم یعنی 19ویں سورت کا کہ 75 آیات کر چکے تھے اور یہ 16واں پارہ چل رہا ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى، اور اللہ تعالی وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کو ہدایت میں زیادتی دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کے معنی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ تو ہدایت کا مطلب راستہ بتانا ہے، راستے پہ چلانا نہیں ہے۔ یہ ذرا مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں رہتی کہ اب جیسا میں آپ سے پوچھا کہ بھئی کپڑا کہاں اچھا ملتا، تو آپ بولے سیدھے ہاتھ سے چلے جائیے، ایبٹس پہ دکانیں ہیں، بس یہ ہدایت ہو گئی ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کے دلا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، یہ ہدایت نہیں ہے۔ تو آپ جو دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ اللہ تعالیٰ سے بتا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ مجھے قرآن اور حدیث کے راستہ بتائیے، مجھے پڑھنے کی توفیق دیجیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرتا، راستے پہ چلتا، تو ہم اس کو اور اچھے کپڑوں کی دکانیں بتاتے ہیں اور اچھے راستے بتاتے ہیں۔ جیسا ایک مثال لیجئے، دین کی مثال لیجئے کہ بھئی کوئی صاحب نماز شروع کر دیے، اب نماز شروع کرنے کے بعد ایک دم خیال آیا کہ بھئی جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو یہ جھوٹ کیوں بولنا، غیبت کیوں کرنا، آفس کو وقت پہ جانا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے لوگوں کو۔ تو آپ جیسا جیسا ہدایت حاصل کر رہے، راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آپ وہ راستے پہ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اور ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور آپ کے پالنے والے مالک کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ دیکھیے، نیکی تو ایک یہ بھی ہے کہ بھئی کوئی غریب پہ ترس کھا کے کھانا کھلا دیا، کوئی پرانا دوست مل گیا بیچارے کے حالات خراب ہے، آپ دے دیے، آپ کی نیت صرف یہ تھی کہ بھئی دوست کی مدد کرنا، وہاں اللہ کا ذکر نہیں تھا۔ تو باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہے ہمارے لیے کہ وہ نیکی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ آج ہم لوگ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو نیکی وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس میں خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت ہو اور ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی نہ ہوئی ہو۔ تو بول رہے ہیں کہ ایسی نیکی جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو وہ جو ہے ثواب کے لحاظ سے یعنی ریوارڈ کے لحاظ سے اور انجام یعنی رزلٹ کے لحاظ سے بہترین ہے۔ اب یہاں کچھ آیتیں جو ہے بعض ریفرنسز میں آیا ہے کہ عاص بن وائل ایک صاحب تھے، صحابی نہیں تھے، صحابی کے والد تھے، ان کے بارے میں ان کے کسی اعتراض کے بارے میں جواب ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ایک جنرل بات ہے بالکل۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یقیناً دیا جاؤں گا مال اور اولاد، یعنی اپنے سے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی۔ اب یہاں بعض تفاسیر میں آخرت کی بات آ رہی ہے، تو آخرت میں مال ملنا اور اولاد ملنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آخرت میں تو جزا سزا جو بھی ہے، مال کا کیا تصور ہے، تمام کائنڈز میں ہے، کھانا پینا ہے، تمام چیزیں کائنڈز میں ہیں، وہاں کیش کے پیسوں کی وہاں کیا ضرورت ہوگی۔ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے فیوچر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حالانکہ میں کفر کر رہا ہوں لیکن میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بول رہے ہیں کہ اطلع الغیب، کیا اس کو غیب کا علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا دوں گا؟ وہ واٹ دا اسٹارز فورٹیل دیکھ لیا ہوگا، ممکن ہے، سب واحد قسم کی چیزیں، تو کیا اس کو علم ہے غیب کا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر وہ رحمان سے عہد لیا ہے، کوئی وعدہ لیا ہے۔ اب یہ بات پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں
रहमान का लफ्ज 57 टाइम्स आया है और मैक्सिमम इस सूरत में 16 टाइम्स जो है रहमान का लफ्ज आया है। रहमान का मतलब यह है कि फायदा पहुंचाने वाला, तो अल्लाह ताला तो फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो क्या ऐसी जात जो फायदा पहुंचाती है उससे इसने कोई वायदा लिया है? कल्ला, हरगिज नहीं। सनक्तुबु मा यक़ूलु, और ये जो कुछ कह रहा है हम इसको लिखते जाते हैं। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और हम इसके अजाब में इजाफा ही करते चले जाएंगे, क्योंकि ये अना की कैफियत है, ये अल्लाह को नहीं मान रहा है, अपनी अना पे, अपने ईगो पे जो है ये इसका पूरा दारो मदार है जिंदगी का। व नरीसुहु मा यक़ूलु, और ये जो भी कह रहा है वो विरासत में हमको मिलेगा, मतलब ये है कि ये हमारे पास वापस आएगा जो भी ये बोल रहा है, और वो याती ना फर्दा, और वो हमारे पास अकेला आएगा। भाई यहाँ तो आप चार को लेके मेरे साथ छेड़छाड़ करता ठहर, मैं अभी महल्ले वालों को बुला के लाता हूँ, भाई को बुला के लाता हूँ, बोले आप ला लिए ना, वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, वहाँ अकेला जाके हिसाब देना है। जैसा डॉक्टर दिशरान अहमद एक बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किए कि भाई दुनिया में अजाब होता तो कलेक्टिव अजाब होता, कहीं जलजला आ गया, कहीं तूफान आ गया, कई लोग खत्म हो गए। आखिरत का अजाब इंडिविजुअल अजाब है, एक एक को अजाब होगा, एक एक को अजाब होगा। तो यहाँ बात आ रही, इसके बाद भी इंशाअल्लाह बात आएगी कि ये अकेला आएगा हमारे पास। वत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, और ये अल्लाह के सिवा दूसरे इलाहा ले लिया है ताकि वो उनसे इज्जत हासिल करे। जरा इस आयत को समझने की कोशिश करना है कि इलाहा कौन है। इलाहा तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाहा नहीं, इलाहा सुप्रीम अथॉरिटी एक ही है। अब अल्लाह ताला के अलावा जितना है मखलूक है, क्रिएशन है, तो क्रिएशन को उठा के क्रिएटर के लेवल पे बिठा देना, मखलूक को उठा के खालिक के लेवल पे बिठा देना, ये शिर्क की कैफियत है। अब ये क्यों कर रहा है? ये समझ रहा है कि इन चीजों से इसको इज्जत मिल रही है। भाई कोई साहब बोले अरे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, ओहदा नहीं मिल रहा बड़ा, फलानी जगह जाइए आप, वहां मांगिए, मिल जाता आपको। तो ये अल्लाह को हट के, अल्लाह ताला को हटा के दूसरों से जो है मांग रहा है, मखलूक को वो पोजीशन दे रहा है। ये समझ रहा है कि मखलूक में से कोई जो है इनको पोजीशन देगा है। तो मालूम हुआ कि जो कुछ है अल्लाह लहू माफी समावाती माफी लर, जो कुछ है आसमानों और जमीन में अल्लाह ताला का है। तो मखलूक को उठा के जो है महज ये आप समझ रहे हैं कि ऐसा इज्जत होगी, आपकी इज्जत नहीं होती, ये तो आजमाइश है। ये बाज लोगों को जो कुछ कामयाबी हो जाती है तो ये आजमाइश है अल्लाह ताला के तरफ से। अल्लाह हमको हमारे मुतालिकीन को ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। कल्ला, हरगिज नहीं। सयकफरून बिइबादतिहिम, ये जो इलाहा इन्होंने बना रखे हैं अल्लाह ताला के अलावा मखलूक से उठा के खालिक का जो मुकाम दिया है, ये जो है इनकी गुलामी की, इनकी परस्तिश की, इनकी वर्शिप की, इनकी पूजा की का इनकार करेंगे क़यामत। बल्कि एक जगह ये आया, ये बोलेंगे कि हमको मालूम ही नहीं था। भाई मैं समझ रहा हूँ खंबे में ताकत है, मस्जिद का खंबा है, तो क्या समझ रहे हैं? अब मस्जिद के खंबे के सामने खड़े रह के जो है मैं दुआएं मांग रहा हूँ, वो खंबे से क़यामत में पूछो तो उन्हें बोलेंगे साहब मेरे को मालूम ही नहीं था, यूँ खड़े हुए थे मेरे सामने, मेरे को कोई होशो हवास ही नहीं थे, मैं तो मुर्दा था। तो यहाँ ये बात समझना है कि मखलूक को जो है खालिक के लेवल पे नहीं बिठाना है। ये क़यामत के दिन इनकार कर देंगे कि हमको पता ही नहीं था। वयकूनु अलैहिम ज़िद्दा, और ये इनके खिलाफ जिद हो जाएंगे, अपोजिशन में आ जाएंगे। यानी अपोजिशन में आने का मतलब ये होगा कि ये बिला वजह झूठ तरीके से हम लोगों के साथ ऐसा मामला करे हैं, आप इनको जो है और सजा दीजिए। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीना तुअज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या आपने गौर नहीं किया कि हम खुद काफिरों पे शयातीन को भेजते हैं कि उनको उभारें, उकसाए एक उकसाना। यानी वी सेंड द डेविल्स टू द इन्फिडल्स टू इंस्टिगेट विद एन इंस्टिगेशन। देखिए अल्लाह ताला खुद काफिरों पर शयातीन को मुकर्रर कर देते हैं कि इनको उभारें, उकसाएं गुनाह करने पे, इस वास्ते कि इनको जो है सजा, ये गुनाह में मुब्तला हो, कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, तो ये गुनाह में मुब्तला हो, फिर इनकी गुनाह की सजा दुनियावी में भी मिले, आखिर में भी मिले, आखिरत में भी मिले। तो ये बात समझना है। और एक एक जगह ये बात आई है कि जो हमारे जिक्र से गाफिल हो जाता है, हम खुद उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। हम लोगों का क्या हाल है साहब, हम बिलावजह अपने आप का बहुत बड़ा पोजीशन समझ रहे हैं।
कल ही मैं कुछ हदीस का कलेक्शन देख रहा था तो एकदम ख्याल आया, भाई बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, कैसी मेहनत किए हैं ये लोग, कहाँ कहाँ चले गए हैं, एक एक हदीस के लिए किधर किधर चले गए हैं। हम लोग कभी किए? बल्कि जरा धूप तेज हो गई तो जो है नमाज को जाना भूल जाते क्या, अवॉइड कर देते। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो कुफ्र करता है उसको और सजा देने के लिए शयातीन मुकर्रर कर देते हैं, वो शयातीन इनको भटकाते हैं, भटका के जो है इनको और रास्ते से हटाते हैं। फला ताजल अलैहिम, तो अब इनके बारे में आप जल्दी मत कीजिए, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, और हमने इनके लिए सिर्फ दिन गिन दिए हैं, कुछ दिन, इनकी मौत तक या अजाब आने तक या क़ियामत तक हम इनके दिन गिन दिए। आप ये मत समझिए कि हमको इनका इल्म नहीं है, हम इनको जो है सजा देंगे। ये दिन कौन सा होगा? यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा, और जिस दिन मुत्तकीन जो है यानी फायदा पहुंचाने वाले अल्लाह ताला के सामने वफ्द, एक डेलीगेशन, ऑनरेबल डेलीगेशन, शाही मेहमानों की तरह पेश किए जाएंगे। तो ये मुत्तकी कौन है? देखिए सहाबा के बारे में रिवायतों में आता है कि जब या अय्युहल लज़ीना आमिनू बोल के कोई आयत आती तो फौरन अलर्ट हो जाते थे कि एक तो हम मुखातिब हैं, वो लोग जो ईमान लाए हैं हम मुखातिब हैं, तो फौरन अलर्ट हो जाते। तो ये मालूम होना है कि भाई उस दिन जो है मुत्तकीन रहमान के पास, अल्लाह ताला के पास जो फायदा पहुंचाने वाले हैं, एक वफ्द की शक्ल में डेलीगेशन, एक शाही मेहमानों की तरह भी जो पहुंच, तो मुत्तकीन कौन है? तो कुरान से ये बात साबित होती है कि मुत्तकी वो लोग हैं जो अल्लाह से डर के गुनाहों को छोड़ते हैं और फिर नेक अमल करते हैं, खाली रुके हुए नहीं रहते, अल्लाह से डर के गुनाहों को छोड़ते हैं और नेक अमल करते हैं। देखिए समझिए कि दो लोग यहाँ इस दर्स में आ गए, एक साहब पीने के आदी बेचारे, उनको मालूम हुआ कि भाई शराब पीना हराम है, अल्लाह ताला इसकी सजा देंगे, तो ये अल्लाह से डर के शराब छोड़ दी। एक साहब डॉक्टर के पास गए, बोले साहब वो लीवर में हमेशा गड़बड़ रहती है। वो बोले कि भाई तो आप इतना पीते हैं कि आपका सिरोसिस ऑफ लीवर होने का डर है, मर जाएंगे आप, तो मौत के डर से शराब छोड़े। तो मौत के डर से जो शराब छोड़ा वो मुत्तकी नहीं है, अल्लाह के डर से जो शराब छोड़ा वो मुत्तकी है। फिर शराब छोड़ के खामोश नहीं रहा, कुरान और हदीस पे अमल किया, क्योंकि अमल की वैल्यू है। तो तक़वे का मतलब समझना है कि अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों से बच रहे हैं और नेक अमल कर रहे हैं, जैसे कि कुरान और हदीस में आया है हम लोगों के लिए। वनसुकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और ये मुजरिमीन जो हैं, मुजरिम कौन होता है भाई? यहाँ भी जुर्म करने वाला कौन होता? यहाँ के कानून के खिलाफ जाने वाला मुजरिम है। तो कुरान और हदीस में हमारा कानून है, तो क्योंकि हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली समझे तो मालूम हुआ कि वो जो कुरान और हदीस के खिलाफ काम करेगा, इन लोगों को प्यासे ऊंटों की तरह जहन्नुम की तरफ हकाला जाएगा। अल्लाह हमको हमारे मुताल्लिक़ीन को महफूज रखे, इनको हकाला जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? मुजरिम है। तो फिर मुजरिम जैसा मुत्तकी समझे, मुजरिम समझिए। मुजरिम कौन लोग हैं? जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, ये आउटलॉज हैं, मुजरिम है ये लोग। ला यमलुकूना शिफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमानी अहदा, इन लोगों को शिफाअत पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। एक तो ये मुजरिमीन जो है इनको शिफाअत पे कंट्रोल नहीं होगा, शिफाअत करने वाले जो है उनको शिफाअत पे कंट्रोल नहीं होगा, सिवाय उन लोगों के जिसको रहमान, जो फायदा पहुंचाने वाले अल्लाह ताला है, उनसे इन्होंने अहद लिया है, इजाजत ली है, सिर्फ उनको इजाजत दी जाएगी। देखिए यहाँ ये शिफाअत का मतलब क्या आ रहा है कि भाई हमारे पास बहुत से लोग हैं, मैं खुद सुन चुका हूं ऐसी बातें, भाई वो फलाने साहब बोले नहीं आप इत्मीनान रखो, क़यामत के दिन हमारे झंडे के नीचे रहेंगे, खत्म हो गई बात। तो अब ईमान और अमल की जरूरत ही नहीं रही, खाली उनका झंडा ढूंढ के झंडे के नीचे चले गए तो फिर जन्नत में चले गए। तो यहाँ कुरान इन चीजों को डिनाई कर रहा है कि क्या इन्होंने इजाजत ली है हमारे से शिफाअत करने की? इनका क्या मुकाम है हमारे पास? क्या मुकाम है जो इस तरीके के वायदे करके लोगों को जो है भटकाते हैं? तो बोल रहे हैं कि जैसा आयतल कुर्सी में भी बात आई कि बगैर अल्लाह ताला की इजाजत की कोई शिफाअत ही नहीं कर सकेगा, और ये शिफाअत का बड़ा लंबा मजमून है। फिर वहां भी बड़ी हैबत होती है कि जो बुखारी मिशकात में जो हदीस आई है, बहुत लंबी हदीस आई है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लोग दौड़ेंगे शिफाअत के लिए। तो वहां मालूम हुआ कि शिफाअत ये होगी कि दोज़ख में जो लोग हैं ईमान वाले, उनको निकाला जाए।
दोज़ख में जो लोग हैं, तो उसका सबूत भी है। शब मेराज को जो है मालिक जो थे दोज़ख के दारों का इंचार्ज, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि मैं 7वां तबका नहीं बताया इसलिए कि उसमें आपके ऐसे उम्मती हैं जो बगैर तौबा के मर गए थे। तो तौबा करना जरूरी है, हम जो भी है गुनाह को गुनाह समझना, तौबा करना। तो यहां फिर और एक जगह ये आया कि नमाज का जो गट्टा रहेगा, नमाज का जो निशान रहेगा, उसको दोज़ख की आग नहीं जला सकेंगे। या अल्लाह, तो नमाजी भी दोज़ख में जाएंगे। भाई नमाज पढ़ लिए, पढ़ के समझे बाहर निकले तो बिल्कुल पासपोर्ट मिल गया, आप क्या जो चाहे कर लो। तो यहां ये बात हमारे जहन में आना है कि कोई ये जो बातें बोल रहे हैं, जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे बस वही शिफाअत करेगा। और खालू, अब ये बड़ी खास आयात हैं, वो खालू तखज़र रहमानु वलदा, और ये कहते हैं कि रहमान जो फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह है, उसने एक औलाद ले ली है, उसकी एक औलाद है। लक़द जी तुम शैयन इद्दा, और बेशक तुम जो है एक बहुत तबाहकुन सख्त बात लेकर आए हो। तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशखुल अर्ज़ा व तखिर्रुल जिबाला हद्दा, यानी ऐसी बात है कि इससे करीब है कि तमाम आसमान फट जाएं और जमीन चीरी जाए और पहाड़ गिर जाए कि अंदऊल रहमान वलदा, कि तुम रहमान के बारे में जो है कहते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में जो फायदा पहुंचाने वाले हैं उनके बारे में कहते हैं कि उनकी औलाद है। बाज यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को बोलते थे और ईसाई जो है ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। तो अब ये जो गुस्सा है कि ये ऐसी बात बोल रहे हैं कि हो सकता है करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ गिर जाएं, ऐसी बात बोल रहे हैं। देखिए पहली बात समझिए जरा, कॉमन सेंस की बात को है, औलाद के लिए माँ बाप का मिलना जरूरी होता है। आप कैसी गाली दे रहे हैं अल्लाह ताला को, सन ऑफ गॉड बोल के जो है कैसी बड़ी गाली दे रहे हैं। और सबको मालूम है बीबी मरियम की औलाद है, बिना बाप के पैदा हुए हैं। कुरान से ये बात साबित है, हम पढ़ चुके हैं, सूरह मरियम के शुरू में पढ़ चुके हैं। तो अब जाहिर है कि ऐसी बड़ी जात वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वैसे कोई है ही नहीं, उनके बारे में ऐसी मिसालें बयान करते हैं। देखिए अब आप हम भी ऐसा बाज वक्त देखते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड रहते, गुस्सा आता है तो घर में तबाही मचा देते, प्लेटां फोड़ते, कुर्सियां फेंकते, वो करते, ये करते, बच्चे भी करते, बड़े भी करते, मर्जी के खिलाफ बात हो गई तो ये तो पूरी कायनात तोड़ के फेंक देने की बात है कि ऐसी गलत बात बोलते हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला की औलाद है। तो अल्लाह ताला तो एक जगह आया है कि अल्लाह ताला की बीवी नहीं है तो औलाद कैसा होगी, कुरान में बात वजाहत की गई है। तो ये बात जो है बहुत गलत करते हैं। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ा वलदा, और जो रहमान फायदा पहुंचाने वाले अल्लाह ताला हैं उनको कोई औलाद की जरूरत नहीं है, औलाद की उनको जरूरत नहीं है, वो औलाद नहीं चाहते हैं। वो यहां चाहने के भी माने आते हैं, वो औलाद नहीं चाहते, उनको जरूरत ही नहीं है औलाद, वो खुद रहमान है, वो खुद दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। और ये बात समझिए, यहां ये बड़ी खास आयत है कि इन कुल्लू मन फि समावाति वल अर्ज़ि इल्ला आति रहमान अबदा, और कोई नहीं है आसमानों और जमीन में मगर रहमान जो फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह है, उसके पास उसकी हैसियत गुलाम की है। इसमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ गए। बात समझिए आप, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बंदे हैं, गुलाम है। बंदे फारसी लफ्ज है, गुलाम हमारे पास आम समझ से स्लेव के माने हैं, स्लेव हैं और रसूल हैं। तो फिर हम कैसा जो है दूसरों को मखलूक में से उठा के ऊंचे ऊंचे मुकामात बना दिए हैं उनके। तो इन चीजों से अल्लाह ताला परहेज करवाए। लक़द अहसाहुम व अद्दाहुम अद्दा, हमने इन सब का हिसाब कर रखा है। और ये अद्दाहुम अद्दा का अक्सर तर्जुमा आप देखेंगे कि वो ये किया गया है कि हमने हर एक की गिनती कर रखी है। मेरे ट्रांसलेशन में मैं उसका ट्रांसलेशन ये कर रहा हूं कि एंड वी हैव नंबर्ड एवरीवन विद ए नंबर। बात समझिए, आपका कार नंबर है, स्कूटर नंबर है, टेलीफोन नंबर है, अकाउंट नंबर है, हाउस नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, हॉल टिकट नंबर है, हर चीज नंबर से पहचाने जाइए आप।
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم لوگ کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. تو اس کا ثبوت کیا دے رہے ہیں؟ وہ کلہم آتی ہی یوم القیامتی فردا. تو تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن ایک ایک آئے گا نمبر کے لحاظ سے، مس نہیں ہوئے گا نمبر. سیریل نمبر 1 2 3 4 جو بھی ہے، آدم علیہ السلام سے چلے آ رہا آخری بچہ جو پیدا ہو کے مرا، پوروں کا جو ہے آل آر نمبر. تو ہم مس ہی نہیں ہو سکتے کہ بھئی اتنے 6 بلین انسان ہیں اس وقت، کہاں حساب لیں گے، کہیں دبک کے نکل جائیں گے. وہ تو نمبر ہے نا، وہ نمبر سے پکڑے جائیں گے، فلانے نمبر کا اکاؤنٹ نہیں آیا. تو ہم جتنے ترکیباں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے سے بہتر ترکیب ہے. اور تم اب ویڈیو کیمراز آ گئے، ٹیپ ریکارڈرز آ گئے، انٹرنیٹس آ گئے، آپ میلوں دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. آپ کر سکتے، آپ کا خالق، آپ کو پیدا کرنے والا یہ سب انتظام نہیں کر سکتا. پورا یہ سب آیات ہیں، یہ پہچاننے کی آیات ہیں کہ یہ پورے لگے ہوئے ہیں، پورے ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس، آڈیو ویڈیو. آنکھ سے برین پہ ریکارڈ ہو رہا جو کچھ دیکھ رہے ہیں، کان سے برین پہ ریکارڈ ہو رہا جو کچھ سن رہے ہیں، چک رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں. خیال، خواب، نیت، عمل، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میموری چپ پہ ریکارڈ نہیں ہو رہی. آپ کے ہائی ڈینسٹی میموری چپ، 90 برس کی میموری جو ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کمپیوٹر پہ رکھ کے بولتے دیکھ لو میاں، تو کیا آپ اپنی میموری کو جھٹلا سکیں گے کہ صاحب یہ میری میموری نہیں؟ تو یہ ہر ایک گنتی کرا ہوا ہے یہاں، اور ہر ایک اکیلا آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم رحمان ودا. اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رحمان یعنی فائدہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے محبت ڈال دے گا. دیکھیے ایک بات سمجھیے، ہمارے کامن ایکسپیرینس میں بھی اچھے آدمیوں کو سبھی پسند کرتے ہیں. جو لوگ اچھے رہتے ہیں نا، کچھ بھی بولے نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، سبھی لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ محبت ڈال دی، انشاءاللہ یہ بات آئے گی. تو فرعون نے، اس کا دشمن، ان سے محبت کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ڈالی گئی. تو بولے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے تو جبرائیل علیہ السلام کو بول دیتے کہ دیکھو میرے کو فلاں بندے سے محبت ہے. تو وہ تمام فرشتوں میں اناؤنس کرتے، وہ تمام زمین والوں میں فرشتے اناؤنس کر دیتے. تو سبھی لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے محبت کرتے. اور ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، یعنی جو غیر مسلم بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سیدھا آدمی ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ محبت بھی ہمارے طرف سے ڈالی جاتی ہے، تمہاری ارننگ نہیں ہے. یہ کہ تم سمجھیں گے میں اتنا اچھا بیہیو کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد، 2 مقاصد یہاں آ رہے ہیں. وَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اور ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں صرف اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ متقین کو، یعنی جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیں جنت کی. اور پھر جو جھگڑالو قوم ہے جو اس کے خلاف جاتی ہے، ان کو دوزخ سے چوکنا کر دیں کہ بھئی وارن کر دیں کہ بھئی دیکھو تم ایسا کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. تو قرآن کا مقصد کیا ہے کہ نیک لوگوں کو خوشخبری سنانا اور خراب لوگوں کو جو ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی اس میں جتنے واقعات آئے ہیں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا جو کانورزیشن ہوا ہے یہ عربی میں نہیں ہوا ہے. یہ قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ عربی میں نہیں ہوا ہے. ان کی زبانیں الگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، سب کی زبانیں الگ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام زبانوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا، عربوں کے لیے جو مخاطب قرآن تھے. پورا ٹرانسلیشن عربی میں کرے. عربوں پہ مخاطب قرآن جو تھے عرب تھے، ان کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی. ہاں، اب ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے عربی نہیں آتی. جیسا پچھلے اتوار کوئی بات آئی تھی، کسی سے بات یہاں ہو رہی تھی کہ بھئی کوئی صاحب بولے میں مڈل ایسٹ گیا اور وہاں دیکھا کہ جب بھی سعودی عرب کوئی بھی اگر مسجد میں آتا تو پہلے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا، اس کے بعد میں بیٹھتا قرآن کھول دیتا.
अज़ां होती, ज़खामत होती, कुरान बंद करता, आके ज्वाइन कर लेता। हमारे पास कोई कुरान ही नहीं खोलते। उसका रीजन यह है कि उसकी मादरी जबान है वो, उन्हें खोलता तो उसको समझ में आता, आपको समझ में ही नहीं आता ना। अच्छा, इसका सबूत और है कि ये 9/11 का जो हादसा हुआ, वर्ल्ड ट्रेड उसका टावर जो गिरा करा, उसके बाद का मैं खुद डिस्कवरी चैनल पे सुनावा हूं मैं कि on an average 35,000 Americans were accepting Islam. 35,000 Americans Islam accept कर रहे हैं हर साल। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या, कैसा एक्सेप्ट करें? कुरान का शॉर्टेज हो गया अमेरिका में, दुकानों में कुरान अवेलेबल नहीं था, इतना बिका है। तो ये कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े अंग्रेजी में अपनी जबान में, सबक लीजिए इनसे। वो अपनी जबान में कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े, कुरान पढ़े, क्योंकि वो एजुकेटेड कौम है। बोले ये क्या किताब है साहब, ये क्या जबरदस्त किताब है, फौरन इस्लाम कबूल करे। उसके बाद उन्होंने तजवीद पे मेहनत की और उनकी तजवीद हमारे से बहुत बेहतर है। बखल किसी बुजुर्ग के, एक जमाना ऐसा आएगा कि कुरान हलकों से नीचे नहीं उतरेगा, हम खाली खाफ और खे के प्रोनाउंसिएशन में रह गए, खाली इसी में रह गए। अलीफ को खींचना, इन की आवाज यहां से निकालना सही है, हर जबान का एक तरीका होता पढ़ने का, लेकिन कुरान का मकसद है। देखिए, क़ियामत में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, उम्मीद ऐसी है कि बुला के ये नहीं बोलेंगे मियां जरा सूरह रहमान पढ़ो, आप भी पढ़ो रहमान, आपकी तजवीद गलत है, देखो आपकी तजवीद ठीक है। हाँ, ये पूछेंगे कि सूरह रहमान में ये जो बात आई थी इस पे तुम कितना ईमान लाए और कितना अमल करे। तब ये मालूम होता है कि ये कुरान को अरबों की जबान में आसान इसलिए किया था कि भाई नेक लोगों को जन्नत की बशारत दी जाए और बद लोगों को, खराब लोग जो हैं उनको दोज़ख से डराया जाए। वह कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन, क्या और कितनी ही बस्तियां, कितने ही जेनरेशंस हमने जो है तबाह कर दिए हैं तुमसे पहले, क्या तुम इनमें से किसी का भी एहसास करते हो? जैसा भाई हमारे वालिदैन, दादा परदादा को देखिए, किसी का एहसास करते हो? और तस्मऊ लहुम रिक्सा, या उनकी कोई आहट सुनते हो? खत्म हो गए वो, एक दिन बस रोए धोए लेके जाके दफना दिए, हो गया, एक थोड़े दिन गम रहा, भूल गए, उसके बाद में कोई नाम भी लिए तो कौन अजीज आपके वालिद साहब, अरे रसैले, ये हालत हो गई। मसरूफ है दुनिया की जिंदगी में, तो बोल रहे हैं कि देखो तुम भी तबाह होने वाले हैं, ये पहले के जनरेशन जो तबाह हुए हैं वैसा तुम भी तबाह होने वाले हैं। तो उनके बारे में कुछ सुनते हो, कोई आहट सुनते हो?